بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں ارباب خضر حیات صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارباب خضر حیات صاحب, ابھی ڈاڈی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا اتنا ہی زور تھا تو وہ لاہور میں کیا ہوا, آپ کا گڑھ تھا, آپ تو وہاں سے کہیں سیٹ نہیں لے سکے. کیا سر کیوں ہے ایسا, کیا آپ کی مقبولیت کم ہوتی جا رہی ہے سر؟ نہیں دیکھیں, اس وقت کی اور اب کی بات میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس وقت عمران خان صاحب اقتدار سے ہٹ گئے تھے اور وہ مظلوم بن گئے تھے اور انہیں مظلومیت پر ووٹ ملا تھا, یہ ایک حقیقت ہے. لیکن ابھی وہ مظلوم نہیں ہے کیونکہ اب ان کی جو اصل وہ شخصیت ہے تو وہ پوری دنیا کے سامنے آیا ہو چکی ہے, بالخصوص پاکستانی قوم کے سامنے. اور میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ یہ 15-20 دن ہے, ابھی آپ دیکھیں کہ کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ اور ان کا کیا انجام ہونے والا ہے. ان کی انہوں نے جتنے حلقوں پہ یہ الیکشن لڑے ہیں تو وہاں سے ان کی ضمانتیں بھی ضبط ہوگی. یہ میں آپ کو آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں. یہ ابھی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ اپنے طور سے نمبر دیتے ہیں اور نمبرز کا گیم کرتے ہیں اور پھر یہ ایک وقتی تبدیلی ہوتی ہے جو کہ بعد میں پاکستان کو نقصان پہنچاتی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ نہیں دیکھیں, ڈار صاحب نے کبھی پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا ہے اور ان پر جو سیاسی مقدمات بنے تھے جس وجہ سے وہ ملک سے باہر گئے تھے, تو یہ بھی سب کو پتا ہے کہ کیا ہوا ہے اس ملک کے ساتھ, نواز شریف صاحب کے ساتھ, مریم نواز شریف کے ساتھ, جو خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی کے ساتھ, اور بہت سی مثالیں ہیں خاقان عباسی صاحب کے ساتھ. تو یہ سب جو ہے وہ سیاسی مقدمات تھے. اسی طرح ڈار صاحب پہ بھی وہی مقدمات بنے تھے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ان پر کوئی مقدمات تھے یا وہ ایک مجرم تھے یا جو بھی تھے تو آج وہ پاکستان واپس نہیں آتے, لیکن وہ اپنے تمام مقدمات سے سرخرو ہو کر پاکستان آئے ہیں. سر ظاہر سی بات ہے, آپ کی گورنمنٹ تھی تو این آر او تو ملا نا, سب کو ہی ملا ہے سر این آر او, تو ان کو بھی ملا, وہ واپس آ گئے. دیکھیں مقدمات تو اگر آپ کی اپنی گورنمنٹ بھی ہو اور پیچھے سے یعنی کچھ وہ آپ کو ابھی میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ اس وقت کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا, لیکن حقیقت پوری دنیا کو پتا ہے کہ اس وقت ملک میں کیا حالات تھے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا تھا. اچھا سر یہاں میں انٹرپٹ کروں گی, میں فوراً آپ کے پاس بھی آتی ہوں. ڈاڈی صاحب بیٹھے ہوئے, ان کو کافی اس حوالے سے بھی پتا ہے کیا ہوا تھا اس وقت ملک میں جو ان کو جانا پڑ گیا تھا. یہ تو کہہ رہے ہیں ان کی سازش ہوئی تھی اور ایسا کچھ تھا نہیں, یہ مقدمات بنائے گئے ان کے خلاف سارے. نہیں, اب مجھے یہ بتائیں کہ ادیبیہ پیپر مل کا جو کیس تھا, ٹھیک ہے, اس کے اندر یہ وعدہ معاف گواہ بنے تھے اور 17 پیج کا اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیا ہے وہاں پہ, اسحاق ڈار نے خود اپنی ہینڈ رائٹنگ سے لکھ کے, ٹھیک ہے نا. اب یہ ہماری ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ کوئی رول آف لا نہیں ہے. پاکستان کا پرائم منسٹر ہوتے ہوئے آپ کے پاس وہاں کا کفالت نامہ مل رہا ہے, کیا وہاں پہ نوکری کرے یو اے ای کے اندر؟ یہ شرمناک بات ہے یا نہیں کہ پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ نوکری کر رہا ہے وہاں پہ یو اے ای کے اندر؟ تو یہ تو وہ چیز ہے جس سے دنیا ہمارا مذاق بناتی ہے, ہمیں جگ ہسائی کی ہوئی ہے. تو خان صاحب غلط بات تو نہیں کرتے نا کہ پہلے خوددار بنو, ایک قوم بنو. ہم ایک ملک تو بن گئے لیکن قوم نہیں بن سکے. مجھے یہ جواب دے کہ 2013 سے 2018 تک جب ان کی حکومت تھی انہوں نے کیا کام کیا, کتنی ایکسپورٹ کی, کتنی انڈسٹریز کو ایکسپینڈ کیا. آپ تو قرضہ جو ہے 2008 سے 18 تک تو $34 بلین سے $94 بلین تک لے گئے. اور جب عمران خان نے 2018 میں ٹیک اوور کیا تو فوری طور پہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ آ جاتی ہے کہ آپ $9.2 بلین فوری طور پہ جمع کرائیں. کیوں کہ ایک پلان تھا. اور آج میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ پلان جو اسحاق ڈار ہے کس پلان کے تحت آئے ہیں, آج سن لیں آپ. یہ 2018 میں جب یہ ناکام ہوئے, ان کا پلان یہ تھا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرنا ہے, کیونکہ مسلم لیگ نون جب گئی ہے 2018 میں تو خزانے میں $8 سے 9 ارب سے موجود تھے. آپ کے پاس ایک مہینے کا بھی امپورٹ بل نہیں تھا اس وقت. تو فوری طور پہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ آ جاتی کہ $9.2 بلین آپ فوری طور پہ جمع کرائیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سارے ان ممالک کو فون کرتے سختی سے منع کیا تھا, خبردار پاکستان کو کسی نے پیسہ دیا. عمران خان اپنی ذاتی کریڈبلٹی کے تحت سعودی عرب سے اور یو اے سے 3 بلین کر کے 6 بلین وہ لے کے آئے اور باقی آپ کو چائنا نے دیا اور آپ نے 9.2 بلین ان کو ادا کر دیے. پلان یہ تھا پاکستان کو ڈیفالٹ کر کے اس کے نیوکلیر پہ قبضہ کرنا تھا. اور ابھی بھی اسحاق ڈار کو اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے کہ پاکستان کو یہ شخص اگر ڈیفالٹ نہ کروائے تو میرا نام فاروق ڈاڈی نہیں,
क्यों? ये एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि पाकिस्तान को डिफॉल्ट करोगे तब जाके आप उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैप्चर कर सकते हो। और जब तक पाकिस्तानी हम कैसे कह सकते हैं कि कोई पार्टी उसको डिफॉल्ट करवा रही हो, खुदा ना खास्ता? इसकी वजह है जब तक पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, ग्रेटर इसराइल नहीं बन सकता। अच्छा, इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो इजराइल को सफ़े हस्ती से मिटा सकता है। तो इन्होंने पहले ये कहा कि पहले पाकिस्तान को उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम से ख़त्म करो, क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट होने के बाद इतनी खून रेजी हो जाएगी, ये 400-500 रुपए का डॉलर हो जाएगा, लोग 10 से गिरेबान होंगे, एक दूसरे के गले काट रहे होंगे। आप खुद कहेंगे भाई ये फटाके को यहाँ से लेके जाओ, और वो उसके एवज आपको कुछ पैसे देंगे। उसके बाद ये जितनी भी हमारी गल्फ की कंट्रियाँ हैं, चाहे सऊदी अरब है, चाहे यूएई है, ये सब पे इजराइल वक्तन फ़ौक्तन कब्जे करेगा और ये ग्रेटर इसराइल बनेगा। लेकिन हम ये सारा प्लान बना, इनकी सबकी जायदादें वहाँ पे हैं, तो इनको उन्हीं के रोड मैप पे चलना है। अगर वो नहीं चलेंगे वो सारी चीज़ें उनकी जब्त हो जाएगी। बीसीसीआई का कैसे उन्होंने सारा कॉन्फिस्केट कर लिया था, इसी तरह चाहे ये इसाक डार हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे कोई भी हो, जो भी इस मुल्क से बाहर पैसे लेके गया है, अमेरिका उन सबको अंदर कर देगा इस मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में, और इनका सब कुछ जब्त कर लेंगे। तो इनको पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है, इनको अपने फॉर्च्यून से, अपनी जायदादों से, अपने रुपए से जो यहाँ से चोरी करके डाके मार के लेके गए उसकी हिफाजत करनी है। तो ये पाकिस्तान को कुछ भी पाकिस्तान को करने के लिए तैयार है, और ये मैं आज फोरकास्ट कर रहा हूँ कि इसाक डार को इसी प्लान के तहत भेजा गया है। सर ये तो बात काफ़ी ख़तरनाक है, और हम तो बहरहाल जब भी प्रोग्राम होता है हम ये ज़रूर कहते हैं कि गेस्ट की राय से हमारा इत्तेफाक करना ज़रूरी है। अशरफ जब्बार कुरैशी तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया जनाब। सर, डार साहब की वापसी भी हो रही है, डॉलर भी अचानक से नीचे आना शुरू हो गया है, ये पेट्रोल की प्राइस भी सुनने में आ रहा है कि ये भी बहुत जल्दी नीचे आ जाएगी। ये इसाक डार साहब के पास कौन सी जादू की छड़ी है जो अचानक से होना शुरू हो गया? अभी तो सीट पे आए हैं और ये इत्तलात भी आना शुरू हो गई, ऐसा क्या हुआ है सर? बड़े अच्छा सवाल किया वैसे आपने बाय द वे, क्योंकि वजह ये है कि कुछ जगह मैं हेडिंग सुन रहा हूँ कि जी डार साहब की जो है डार साहब से आने से डॉलर डर गया। किसी जगह मैं सुन रहा हूँ कि मुझे सिर्फ एक बार बताएं कि डार साहब कोई क्या लेकर आए हैं जिसकी वजह से जो अचानक डॉलर ये गिर गया, स्टॉक एक्सचेंज में तेजी आ गई। ये आपको सब कुछ नहीं लगता कि ये मैनेजमेंट है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है? क्या आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई अचानक? क्या आपके पास अचानक जो है बहुत बड़ी डॉलर की सूरत में इमदाद कहीं से आ गई है, या आपको कोई कर्जा मिल गया है? क्या ऐसा हुआ है जिसकी बुनियाद पर जो है ये सारी चीजें हो रही हैं और ये भलाई जा रही है कि जी वो आके बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देंगे? पेट्रोल प्राइसेस आपको पता है पूरी दुनिया में कम हुए, इन्होंने कम नहीं किए हैं। सारी चीजें तो सबके सामने आ रही हैं। ये अगर कोई ये समझते हैं कि फेजेस चेंज करके किसी को आवाम को बेवकूफ बना सकेंगे, तो ये इनकी खाम ख्याली और भूल है इनकी इस बात के लिए। वजह इसकी ये है कि पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी है, इकोनॉमिकल पोजीशन हमारी बड़ी खराब है, इंडस्ट्री हमारी बैठ चुकी है, एक्सपोर्ट हमारी है नहीं, तो अब एनर्जी क्राइसिस हमारे मुल्क में है, बिजली के रेट इतने ज्यादा हैं कि कोई बंदा घर के अंदर बल्ब जलाने के तस्वुर भी नहीं कर पा रहा। तो ऐसी सूरत में जो है आप ये कहें कि डॉलर जरा नीचे गिर रहा है और अचानक डार साहब की वजह से गिर गया, तो ये मेरे ख्याल में अपने आप को तसल्ली देने वाली बात है, और इसके अलावा तो कुछ भी नहीं समझ में आता। क्योंकि वजह ये है कि ये सिर्फ मसनूई है सारा का सारा, इसमें कोई किसी का जो है इनका किरदार नहीं है। हो सकता है डॉलर कुछ लेकर बैग में लेकर आ गए हो, जो लेके गए थे पाकिस्तान से बाहर, तो शायद लाके कोई स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में डाल दिए हो, तो क्या थोड़ी देर के लिए तसल्ली हो जाए कि जी इलेक्शन ना कराना पड़े, आवाम के गजब से बच सके। तो ये तो मुमकिन नहीं रहा, इलेक्शन तो कराने पड़ेंगे हर सूरत के अंदर। सर, ये और वो खान साहब के बयानात का सिलसिला वक्फे जारी रहता है। अभी तौहीन अदालत का फाइनल जो फैसला है वो भी आगे आने वाला है, फिर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी बयानात चलते रहते हैं, बहुत से मुकदमात का सामना है इस वक्त खान साहब को। उसके बावजूद उनके बयानात का सिलसिला रुक नहीं रहा, अभी भी उनकी जो बयान है, उनकी जुबान है वो वैसे ही है। आपको लगता नहीं कि इस वक्त ये कुछ खतरनाक है इस किस्म के बयानात देना, और खान साहब को कुछ एहतियात कर लेनी चाहिए थी? देखिए, कुछ एक आध हवाले की अगर बात करें तो उसके अलावा जो बाकी बयानात तो उनके तो बिल्कुल ऑन मेरिट है और बिल्कुल सही बात है। और जो वो बात कर रहे थे, जो वो बात कह रहे हैं, तो जिसके अंदर क्या गलत है कि ये लोगों ने पूरी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया है, ये यहाँ से पैसे पाकिस्तान से बाहर लेके गए,
ये पूरी दुनिया के अंदर वहाँ बैठे हुए हैं और बड़े धड़ल्ले के साथ उन लोगों को ला के बिठा रहे हैं, जिन लोगों के ऊपर इनके केसेस बने हुए थे, जिनको सजाएं थी, जिनके जरिए जो है, जिनके पास जो है ये था डिमांड थी कि पाकिस्तान का पैसा वापस लेकर आए। तो खान साहब क्या गलत कह रहे हैं इसके अंदर? आप मुझे बताएं कि क्या इस कौम ने नहीं देखा था कि ये पूरा मुल्क क्राइसिस में किन लोगों की वजह से आया हुआ था? क्या पूरे 70 साल के अंदर 3.5 साल पूरे पाकिस्तान में मुल्क पे भारी पड़ गए? इन्होंने जो कर्जे लिए थे उनको कर्जे को रीपे करना, डॉलर की प्राइसेस दुनिया भर के अंदर भी क्या पोजीशन में चल रही है, महंगाई का जो तस्वुर था पाकिस्तान के अंदर जो हुआ, जो तबाहियां हुई हैं, कोरोना कितना टाइम, 2 साल कोरोना का टाइम रहा, 2.5 साल का कोरोना का टाइम गुजरा, उस दौरान में इकॉनमी कितनी बेहतर रही। इन्होंने लाके 3 महीने ये 4, अब तो 4-5 महीने 6 महीने हो रहे हैं इनको, क्या कौम ने नहीं देखा जिसकी बुनियाद पर इन्होंने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, हम पाकिस्तान को बचाएंगे, हम बड़े, और कहते हैं कि सख्त फैसले करने पड़े। सख्त फैसले कौन से किए? कौन से होटल में जाके रहे ना? आपने जो अमेरिका में अभी गए थे, कौन से होटल में जाके रहे थे भाई आप? बड़े सख्त फैसले किए आपने, सिर्फ फैसले अवाम के लिए सख्त किए आपने, कि अवाम के मुंह से निवाला छीन लिया, ये सख्त फैसले किए आपने। आपने ये काम किया कि लोगों को जो है रोड पर चलना मुश्किल हो गया, रात को घर में सोना मुश्किल हो गया, आपने ये फैसले किए ना। और अपने लिए आपने दुनिया, वहाँ के अमेरिका के महंगे तरीन होटल के अंदर आप चले गए, वो खातून वहां से घूम रही हैं और दुनिया की महंगी तरीन कॉफी पी रही हैं। आप मुझे ये बताएं कौन से बैग लेके घूम रही हैं? जराए आमदनी क्या है आपके, रिसोर्सेज क्या है? आप ये तो सोचें कि इन लोगों ने कहाँ पहुंचा है। ये कोई, आप देखें, ये नामुमकिन बात हो गई है, क्योंकि बहुत आवाम अवेयर हो गई है, आवाम बहुत आगाह है हर चीज से, उसको नजर आ रहा है उनके सामने कि जिन लोगों को जो है ये बार बार जो पलट के सामने आ रहे हैं कि जो चीज लूट मार की थी उसका नतीजा सामने आ रहा है लोगों के सामने। तो इमरान खान तो गलत कह नहीं रहे। हाँ, अगर बात आपको फौज के हवाले से कहें तो मैं कहूंगा कि फौज जो है, फौज हमारी लाइफ लाइन है। फौज के बगैर हमारे यहाँ पाकिस्तान हमारा कभी भी जो है नहीं चल सकता, और इसके लिए खान साहब भी इस बात कह रही है। कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए बताई जाए। हमारी फौज हमारी सपोर्ट है, पाकिस्तान की सपोर्ट है, पाकिस्तानी अवाम की सपोर्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ऐसी कौन सी बात की जा रही है? सर, खान साहब ने जो जलसे पे खिताब किया है उसके बाद आप क्या ये कंफर्म समझा जाए कि ये जो लॉन्ग मार्च की कॉल है वो वाकई दे दी जाएगी? वाकई आप तैयारियों में हैं कि लॉन्ग मार्च के लिए लोग निकलेंगे और आपकी तरफ से भी तैयारियां हो रही हैं? आप मेरे ख्याल में अब तक जो हिस्टोरिकल जलसे आप देख रही हैं तो अवाम खुद निकल कर आती है। क्या इनमें से किसी भी पार्टी में इतना दम है कि बगैर लोगों को बुलाए, बगैर किसी को ट्रांसपोर्ट दिए हुए, बगैर अपने वर्कर को मोबिलाइज किए बगैर, क्या जिस तरह इमरान खान साहब जलसे कर रहे हैं कोई कर सकती है? किसी पार्टी में दम है? ये अवाम का शऊर है। वो आके इमरान खान साहब को अपने निजात दहन तो समझते हैं, तो वो इमरान खान साहब के लिए आते हैं। क्या मत समझ रही है कि आप वहाँ पे जो है ये लोग ये क्या समझना चाह रहे हैं? घेराव हो जाएगा इस्लामाबाद का, ब्लॉक कर देंगे पूरा पाकिस्तान, इनको पता भी नहीं चलेगा। ये बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं चीजों को। भी उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से इकदाम हुए थे, अभी तो और ज्यादा इकदाम की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं, बल्कि 15 दिन जो दिल चाहे कर लें, जो दिल चाहे कर लें। जिस दिन इमरान खान कॉल देंगे उस दिन इस्लामाबाद बंद होगा, पूरा पाकिस्तान भी बंद हो सकता है। आप इस बात को बिल्कुल भूल जाएं। जिसको भी ये समझ में आ रही है कि कोई मजाक हो रहा है, ये मजाक नहीं हो रहा। मुल्क के मफाद में ठीक है कि इस्लामाबाद को बंद कर दिया जाए? देखिए, बात ये नहीं है, बात ये कि एहतजाज का हक हमें हासिल है, पूरी कौम को हासिल है। जब आप फैसले, इतने बुरे फैसले करेंगे कि लोगों का निवाला छीन लेंगे, इतना बड़ा झूठ बोल के लोगों के साथ मजाक करेंगे अवाम के साथ कि आपने कहा था ये महंगाई हो रही है, इतनी बड़ी महंगाई हो रही है और हम महंगाई को तोड़ लेकर आएंगे। आज एक वजीर खजाना हटाने से आप क्या समझते हैं कि लोगों को तसल्ली हो जाएगी, सुकून आ जाएगा? आपने जो कुछ किया है, आपने सबके अवाम के सामने नजर आ रहा है। तो ऐसे मौके पर जो है आप समझते हैं कि अवाम की फ्रस्ट्रेशन नहीं है, क्या अवाम जो है परेशान नहीं है? आप लोग तो मीडिया वाले, आपको समझ में आता, आप खुद देखते हैं पूरे पाकिस्तान के, दुनिया भर के सर्वे बता रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम किसके साथ खड़ी हुई है। अगर आप ये समझते हैं कि ये तो एहतजाज का हक है हमारा, हम एहतजाज करने के पुरअमन एहतजाज करने के लिए जाना चाहते हैं, हम पीसफुल एहतजाज करना चाहते हैं ताकि लोगों का एहतजाज रिकॉर्ड हो। और ये जो कहते हैं ना, जो धमकियां दे रहे हैं, उनको धमकियां किस बात की धमकियां दे रहे हैं? क्या आपने एहतजाज नहीं किया? क्या आपने जलसे नहीं किए? क्या आपने जो है धरने नहीं किया? आपने सब कुछ किया, अपने वक्त सब जायज हो जाता है। आज अगर तहरीक इंसाफ करने के लिए जा रही है तो पॉलिटिकल हक है उसका, जमहूरी हक है ये। हम करने जाएंगे और करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन सर 25 मई को कोई वाकया कोई प्लेजेंट नहीं था, बड़े हमने जो देखा वो कोई अच्छे मनाजिर नहीं थे। हम जो टीवी स्क्रीन पे देख रहे थे, जो कुछ हकाइक हमारे सामने बाद में आए कि दरख्तों का जलना भी हुआ, लोगों की अमवात भी हुई, पुलिस कांस्टेबल का मरना भी, शहीद होना भी, तमाम चीजें सामने रही हैं। अभी कोई बहुत पहले अरसे की बात नहीं है ये। आपने उस वर्कर का जो है पुल पे से गिरकर उसको गिराकर उसको शहीद करना नहीं देखा था आपने? क्या हुआ था उस दिन? सर मैं वही कह रही हूं कि मैं कह रहा हूँ कितनी फसाइयां दिखाए। आप देखिए किसी भी जमहूरी माशरे के अंदर, ये जमहूरी माशरे में ये अमल
بدترین عمل ہوتا ہے کہ حکومت اس طریقے سے چارج کرے لوگوں کے اوپر۔ پرامن مظاہرین جب پہنچ رہے تھے، احتجاج کرنے کے لیے آ رہے تھے، ہمیشہ ہمارا تحریک انصاف کا ہمیشہ احتجاج رہا ہے، کبھی ہم نے نقصان نہیں پہنچایا کسی جگہ بھی، ہم لوگ کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، ہم پرامن دھرنا پرامن احتجاج کرتے ہیں ہمیشہ۔ چلیں سر، ہمیں امید ہے کہ پرامن احتجاج ہی ہوگا۔ بہت شکریہ اشرف جبار قریشی صاحب، تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی فاروق لاٹھی صاحب، لاسٹ کامنٹ کیجیے گا۔ لاسٹ کمنٹ میرا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اپنے افز و ایمان میں رکھے، اور حکومت کو جو بھی مقتدر اعلیٰ ہے اس کو چاہیے کہ فوری سے فوری بیشتر الیکشن ٹرانسپیرنٹ کرائے، اور میں ایک ڈیمانڈ کروں گا کہ جو الیکشن کمشنر راجہ سکندر جو بھی ہے اسے فوری طور پہ ہٹایا جائے، کیونکہ یہ ایک پارشل جانبدار شخص ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ شریفوں کا کوئی ملازم ہو۔ تو بہرحال ان ایسے لوگوں کی موجودگی میں الیکشن کروانا ایک مشتبہ چیز رہے گی، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، سب مل جل کے رہیں، اور ہم سب سے پہلے ہر فیصلہ پاکستان کے انٹرسٹ میں کریں۔ چلیے جی، بہت شکریہ سر آپ کا۔ گیسٹ کی رائے سے ہمارا متفق ہونا ضروری نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کرتے ہیں اور پروگرام میں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے ملک کی حفاظت کرے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔